Hello, my dear subscribers and my dear students. Today's topic is microbes in human welfare, NEET biology. So let us start microbes in human welfare. In this chapter, we will understand the advantages of microbes. Basically, microbes are harmful for us, but similarly, microbes are helpful for us also. In this chapter, we will understand which types of the substances or medicines or household products which can be produced with the help of microbes. Okay, so now let us start a very important chapter for board and NEET exam. Okay, so now microbes in human welfare. Microbes are microorganisms which have size of less than 0.1 millimeter, are everywhere and can survive with the temperature of 100 degrees Celsius in the thermal vents. 100 डिग्री सेल्सियस पर भी थर्मल वेंट्स में माइक्रोब्स सर्वाइव हो सकते हैं नेचर में. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोसेसिंग. तो अब हम देखते हैं कुछ हाउस होल्ड प्रोसेसिंग जो माइक्रोब्स से बने हैं. ब्रेड इज प्रिपेयर्ड बाय ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. इट फॉर्म ए पफी स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस. तो ब्रेड के अंदर बिस्किट्स में, ब्रेड में एंड बन जो हम देखते हैं बन, उन सब में जो पफी स्ट्रक्चर होती है वो CO2 की वजह से होती है. एक्चुअली ईस्ट प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम, amylase, maltose and zymase. So amylase, maltose and zymase enzyme. Amylase changes the starch into maltose. Maltose changes into maltose into glucose, and zymase changes the glucose to form bubbles of ethanol and CO2. So these were the 3 enzymes produced by yeast. Now second product is idli dosa. Rice black gram mixture fermented by leuconostoc, mesenteroids and streptococcus faecalis के जरिए बन के तैयार होता है इडली डोसा. नाउ सोयाबीन प्रिपरेशन. इससे हम देखते हैं सोयाबीन की प्रिपरेशन से. टेम्फ is an Indonesian food formed by the fermentation of soybean. Sofu, it is a Chinese. Tofu, Japanese are the cheese-like products soybean obtained after fermentation with mucor species. Soya sauce, it is obtained from mash of the soybean fermented with the help of Aspergillus oryzae and Lactobacillus. Curd, lactic acid bacteria produce lactose which convert the lactose into lactic acid. It also partially digests the milk protein casein, and lactic acid cause the coagulation of protein to form curd. It form vitamin B12 and check the growth of the disease causing microbes and has anti-cancer property. तो दही खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं. दही से विटामिन B12 बनता है. Yogurt, it is fermented milk which contain Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. तो योगर्ट बनता है 2 माइक्रोब्स के ज़रिए, 2 बैक्टीरिया के ज़रिए, जो कि अभी हमने देखा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस. केफीर, it is fermented milk where a mixture of lactic acid, bacteria and yeast are used in kefir grains. Cheese, cheese में हम देखें रॉकफोर्ट चीज़ employs the penicillin roqueforti, and Swiss cheese has large hole produced by the CO2 given out by bacterium propiani, bacterium shermiani. तो हम देख रहे हैं जो पनीर हम बनाते हैं उसमें रॉकफोर्ट चीज़ तो
पेनिसिलिन नाम की फंगाई से बनता है, और स्विस चीज़ जो होता है प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मियानी से बनता है। नाउ नेक्स्ट इज सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन SCP, it is a protein rich microbial biomass which can be used as a food and feed Methylophilus and Methylotrophus. Single cell protein has all the essential amino acids, both autotrophs like spirulina and heterotrophs like yeast, mushroom used as a SCP. Now toddy, coconut water is fermented to produce a refreshing drink called toddy, drink of South India. Arrack is obtained by distillation of fermented toddy. toddy को भी fermented करके डिस्टिलेशन करके एक उससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे कहते हैं एरेक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेस्ट्रोलाइजेशन। तो हम देखते हैं पेस्ट्रोलाइजेशन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ पेस्ट्रोलाइजेशन, preservation of milk, wine and other liquid articles by heating for a brief period and then suddenly cooled, and this technique discovered by Pasteur in 1864. Now alcoholic fermentation. Louis Pasteur found beer and buttermilk are produced due to the activity of yeast as fermentation bioreactor fermentation tank is sterilized with the help of steam under pressure, and beer contain 3 to 6% of alcohol. Wine contain 10-27% alcohol. Gin contain 40% alcohol. Rum contain 40% alcohol. Brandy contain 70% alcohol. Rectified spirit contain 95% alcohol. Absolute alcohol contain 100% of alcohol. Red wine is red due to color from grape skin. Chimpanzee is the champagne is the most popular sprinkling wine. तो जो शैम्पेन होती है, शैम्पेन इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पार्किंग वाइन। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स। Alexander Fleming 1928 that growth of fungus Penicillium notatum, antibiotic penicillin, especially killed the Staphylococcus aureus. Therapeutic value of penicillin was explored by Chain and Florey. First penicillin was made in 1941 during the Second World War. Penicillium notatum was replaced by Penicillium chrysogenum. S. Walkman 1944 a new antibiotic streptomycin. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई थी, जिसमें यूज़ किया था उन्होंने पेनिसिलिन नोटेटम नाम की फफूंदी। इसके बाद उसी से उन्होंने एक दूसरे साइंटिस्ट थे एस वॉकमैन, उन्होंने 1944 में एक नई एंटीबायोटिक बनाई स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें भी उन्होंने पेनिसिलिन नोटेटम की जगह पर पेनिसिलिन क्राइसोजिनम नाम की फंगाई को यूज़ किया था। पेनिसिलिन बैक्टेरियसिन एंड सेफेलोस्पोरिन स्टॉप्स द बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक में आती है एम्पिसिलिन। कंप्लीटली सिंथेटिक एंटीबायोटिक में आती है क्लोराम्फेनिकॉल। ओके, नाउ बायो फर्टिलाइजर्स। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो एरोबिक, जिसमें आते हैं एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, और एनारोबिक में आते हैं कोलोस्ट्रीडियम। ये फ्री लिविंग हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में आते हैं, जैसे नॉस्टॉक होता है, एनाबीना, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एजोला पिन्नाटा इज ए स्मॉल एक्वेटिक फर्न इन राइस फील्ड। इट कंटेन द सिम्बायोटिक
एनारोब्स इन इट्स लीफ कैविटीज़। तो ये है बायो फर्टिलाइज़र। इसका और एग्जाम्पल देखें, माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा हायर प्लांट रूट like as a pine and cycas, like as a pine and cycas. The genus Glomus with fungal association form the mycorrhiza. It absorb phosphorus from the soil. माइकोराइजा एक बायो फर्टिलाइजर है। इसी तरीके से सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एंड अदर स्पीसीज फॉर्म mutually beneficial association with root nodule of legumes. A root nodule has a growing point, vascular strand and reddish pigment, lag hemoglobin but lacks root cap and root hair. तो अभी हमने देखा बायो फर्टिलाइजर्स को क्या होते हैं। These are the microbes which are helpful in fixing the atmospheric nitrogen into the soil and increase the fertility power. These are biofertilizer, जिसके एग्जाम्पल हमने देखे थे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोराइजा, और हमने देखा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम। Rhizobium legumineserum and other species form the mutually beneficial association with the root nodule of legumes, and root nodule has growing point, vascular strand and reddish pigment, lag hemoglobin but lacks the root cap and root hair. तो ये थे बायो फर्टिलाइजर। अब हम देखते हैं मैन्योर। मैन्योर नाउ सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल which is added to the soil in order to maintain its fertility power. तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं एग्रीकल्चर वेस्ट से जो कि सड़ाकर तैयार होता है, उसे हम कहते हैं मैन्योर। डिकम्पोजिंग मटेरियल है मैन्योर। सो नाउ मैन्योर इज़ ऑफ 4 टाइप। जैसे हम देखें फार्म यार्ड मैन्योर, इसमें डंग, फॉलन लीव्स, ट्विंग्स अंडरगो डिकम्पोजिशन। इसके बाद सेकेंड है कॉम्पोस्ट मैन्योर, रॉटन वेजिटेबल्स, गार्बेज, सीवेज या स्लग इसके अंदर आते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग, इट इज़ ए कंपोस्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स। इसके बाद ग्रीन मैन्योर, इसमें आते हैं सन, हेम्प, बीन एंड बरसीन। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो ऐसे भी कुछ बायो कंट्रोल एजेंट हैं जो कि माइक्रोब्स की मदद से तैयार होते हैं, बैक्टीरिया की मदद से तैयार होते हैं। जैसे नंबर 1 आता है बीटी कॉटन। इसके अंदर जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वो है बेसिलस थुरिनजेनेसिस। वैक्यूलो वायरस आर द पैथोजन अटैक इंसेक्ट्स, जिसका जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। तो ये भी इंसेक्ट्स को मारने में हेल्प करता है, प्लांट को सेव करता है। गम्बूशिया फिश ईट्स द मॉस्कीटो लार्वा। गम्बूशिया फिश पॉन्ड के अंदर मॉस्कीटो लार्वा को खा लेती है। तो एक ये बायो कंट्रोल एजेंट है मॉस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफाइट्स मॉस्कीटो। तो एफाइट्स एंड मॉस्कीटो को से छुटकारा पाने के लिए लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज जो होती हैं वो बनी है बायो कंट्रोल एजेंट में। और कैक्टस बायो कंट्रोल एजेंट इज़ कोचिनियल स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। तो जो कैक्टस का प्लांट है वो एक तरीके की वीड है। कोचिनियल इंसेक्ट जो होता है कैक्टस को प्लांट को खा के बराबर कर देता है। तो जब हम बायोलॉजी की मदद से हम या माइक्रोब्स की मदद से हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो उसे बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। अब जैसे फूड चेन प्रोसेस में अगर हमें रैट से छुटकारा पाना है तो हम क्या करें, कैट पाल लें। तो कैट क्या करेगी, सारे रैट्स को खा जाएगी, जिसकी वजह से हमारे घर में फिर रैट नहीं आएंगे अगर हमने कैट पाल रखी है। तो ये भी एक तरीके का बायो कंट्रोल एजेंट है। रैट से छुटकारा पाने के लिए सॉल्यूशन है कैट। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में माइक्रोब्स क्या इस्तेमाल होते हैं ये देखते हैं। अब हम बायोगैस मीथेन में जो होती है 50 से 70%, CO2 जो होती है वो 25 से 35% होती है, हाइड्रोजन जो है 1 से 5% होती है, नाइट्रोजन 2 to 7% होती है।
डेवलप्ड बाई IARI जिसे कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा KVIC जिसे कहते हैं खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। डंग इज कैप्ड इन 10 to 15 feet डीप कॉन्क्रीट और ब्रिक लाइंड एयर टाइट सिलेंड्रिकल टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर। तो डाइजेस्टर के अंदर जो कि 10 से 15 फीट गहरा होता है, वो जो है मेटल का भी बना हो सकता है, ब्रिक्ड भी हो सकता है, उसके अंदर गोबर को इकट्ठा किया जाता है। कैटल डंग कंटेन द मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमन ऑफ द कैटल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो जो कैटल का जो डंग होता है, कैटल की जो इंटेस्टाइन की रूमन पार्ट होती है, उसके अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसके गोबर के ज़रिए उसके अंदर आ जाते हैं। ये मिथेनोजन बैक्टीरिया कैटल के अंदर उसकी इंटेस्टाइन में सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए होते हैं। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो है वो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन आता है, जिसमें द सॉलिड सेटल फॉर्म इज कॉल्ड प्राइमरी स्लग विच फॉर्म बायोगैस। एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, अब इसके बाद हम देखें BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। यानी 1 लीटर वाटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रोब्स के ज़रिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम BOD कहते हैं। ग्रेटर BOD इंडिकेट्स, अगर BOD अगर ग्रेटर है, बड़ी हुई है किसी पानी के अंदर, BOD बड़ी हुई है तो ये डर्टी वाटर का सिंबल है, और अगर लोअर BOD है तो वो प्योर वाटर है। तो केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसे सिट्रिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर नाम की फफूंदी से सिट्रिक एसिड बनता है। एसिटिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम के बैक्टीरिया से बनता है एसिटिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कोलोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम नाम के बैक्टीरिया से बनता है। लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है। इथेनॉल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से बनता है। एंजाइम लाइपेज इज़ यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्पफुल इन द रिमूविंग ऑयली स्टेन्स। तो ऑयली स्टेन्स को दूर करने के लिए लाइपेज एंजाइम जो है यूज़ किया जाता है। बॉटल्ड जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज़ ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत आता है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, इज़ यूज्ड इन एज ए क्लॉट बस्टर इन हार्ट पेशेंट। तो आजकल जो नसों के अंदर ब्लॉकेज हो रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है तो वो अंदर से क्लॉट बना लेता है। तो हार्ट के पेशेंट्स को जो कार्डियोलॉजिस्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शन देकर नसों के अंदर जो ब्लॉकेज हुई है कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसको ब्रेक कर देते हैं, इसीलिए इसे ब्लड क्लॉट बस्टर भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज़ बहुत आता है। इसके बाद है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इज़ ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो एक फफूंदी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के जरिए साइक्लोस्पोरिन ए नाम का एक प्रोडक्ट, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाया गया है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय में इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट की तरह काम करता है। इसके बाद आते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ जिन्हें हम स्टैटिन कहते हैं। नाउ स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट एक फफूंदी से बनता है जिसका नाम है मोनोस्कस परप्यूरे, यूज्ड एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जो कि बहुत आता है आजकल, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत आ रही है तो उन दवाइयों को कहते हैं स्टैटिन। जो स्टैटिन दवाइयाँ होती हैं वो मोनोस्कस परप्यूरे नाम की फफूंदी से बनती हैं। ठीक, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर
कुछ नीट के क्वेश्चन, सॉसेज इज फर्मेंटेड मीट, फर्मेंटेड मीट को सॉसेज कहते हैं। थेरापेटिक वैल्यू ऑफ पेनिसिलिन, किसने बताया था कि पेनिसिलिन से इलाज हो सकता है, वॉज एक्सप्लोर्ड बाई चेन एंड फ्लोरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेन एंड फ्लोरी ने बताया था पेनिसिलिन से हम इलाज कर सकते हैं। द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो वो एंजाइम होगा विटामिन B12। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन B12 और विटामिन सी, तो हम कर्ड के अंदर कहेंगे विटामिन B12। इसके बाद देखें यहाँ पर ये मैचिंग है, स्टैटिन, स्टैटिन को हम मिलाएंगे यहाँ पर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल एजेंट, साइक्लोस्पोरिन ए को हम मिलाएंगे इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम मिलाएंगे रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, लाइपेज को मिलाएंगे रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स, इसका मतलब फर्स्ट को सी से, सेकंड को डी से, थर्ड को बी से और फोर्थ को ए से। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, ठीक। इसके बाद आता है एल्कोहल ड्रिंक्स इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, उसी को हम वाइन कहते हैं, जिसका डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है उसी को हम वाइन कहते हैं, कच्ची शराब। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट टिश्यू। बिग होल्स इन स्विस चीज़, जो स्विस चीज़ होते हैं उसके अंदर जो बिग होल्स हैं आर मेड बाई ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, बैक्टीरिया के जरिए एक ज़्यादा फर्मेंटेड फॉर्म में CO2 ज़्यादा निकलती है, इसीलिए स्विस चीज़ के अंदर बिग होल हो जाते हैं। वैसे भी पूछा जाता है फर्मेंटेशन में कौन सी गैस निकलती है, तो हम कहेंगे आंसर लगाएंगे CO2। विच वन इज़ ए नीम प्रोडक्ट यूज्ड एज ए इंसेक्ट रेपेलेंट, नीम का प्रोडक्ट है जो इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह काम करता है, वो है एज़ेडिराकैटिन, तो हम कहेंगे एज़ेडिराकैटिन। Which antibiotic inhibits the peptide bond formation? Chloramphenicol. Pyrethrin is obtained from Chrysanthemum. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विच इम्प्रूव द फॉस्फोरस अपटेक, एजोस्पायरलम। एजोस्पायरलम जो है वो फॉस्फोरस को लेता है मिट्टी से। वर्मी कंपोस्ट इज़ बायो फर्टिलाइजर विच इज़ रिच इन, इन्होंने पूछा है किस चीज़ में रिच होता है, तो फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑल द एबव, तो ऑल द एबव में ठीक लगाएंगे वर्मी कंपोस्ट। जेट्रोफा इज़ द प्लांट स्पीसीज यू वुड सेलेक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल, तो जो बायोइथेनॉल जेट्रोफा प्लांट से फ्यूल तैयार होता है, जेट्रोफा प्लांट से, इसी को हम बायोइथेनॉल कहते हैं। बीटी टॉक्सिन इज़ द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। पेस्टराइजेशन टेक्स प्लेस, किस लेवल पे पेस्टराइजेशन होता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर हम लगातार गर्म करें तो पेस्टराइजेशन हो जाएगा, ये उसका जो है रिकमेंडेड टेम्परेचर है। VAM इज़ वासिकुलर आर्बुसिकुलर mycorrhiza is a symbiotic association between Phycomycetes fungi and angiosperm root. Cry second AB and first AB produce the toxin that control cotton bollworm and corn borer respectively. Brodex mixture is a fungicide. Brodex mixture एक fungicide है। Nitrogen fixing microbes associated with azolla in rice field is Anabaena. Vermicompost does not alter the soil quality as that of synthetic fertilizer. Next question है humic acid components of vermicompost contain the plant growth factors. इसके बाद during cellulose fermentation by anaerobic bacteria in rumen and reticulum cellulose is mainly changed into the volatile fatty acids. बायोगैस इंक्लूड, बायोगैस के अंदर इंक्लूड होती है CH4H2S एंड CO2, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 गैसेज होती हैं। माइक्रोब्स यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ द पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज
Bacillus thuringiensis. Fungus used in preparing soy sauce is Aspergillus. Flock is the mesh-like structure formed by association of bacteria and fungal filaments in sewage treatment. तो इस चैप्टर के हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट सब हमने देख लिए। इसमें हमने सारी कवरेज कर ली है। मैं समझता हूँ नीट में एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाएगा, एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो इसलिए एक एक पॉइंट को याद करें, ठीक। और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। लगातार तैयारी करते रहें।